Once again, welcome to my YouTube channel DGP Maths friends. Before this lecture, we have started differentiation. We have seen what is differentiation. We have seen standard formula, first principle, definition, then some examples based on working rules, addition rule, subtraction rule, multiplication rule, division rule, and then composite function. Now today we are going to study differentiation of inverse trigonometric function. हमने जो trigonometric function है sin x, cos x, उनका already derivative क्या है, किस तरह से करना वो हमने देख लिया है. अब हमें ये जो inverse trigonometric function है उनका differentiation हम कैसे करते हैं वो देखना है. तो ये जो standard formulas हैं पहले वो formulas हम याद रखेंगे. So first is dy dx of sin inverse x. So this is equal to 1 upon root 1 minus x square. 1 upon root 1 minus x square, and here condition is that modulus x must be less than 1. For that this formula is useful. Similarly for cos inverse x, only one change. Here I have to write minus. So minus 1 upon root 1 minus x square. Again condition is modulus x less than 1. So sin inverse x and cos inverse x formulas are little bit same, only we have to write minus for cos inverse x. Next is tan inverse x. So differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, and here condition is x belongs to R, means it could be any real number. Here we can also write x square plus 1. X square plus 1 likhe, 1 plus x square, both are same. Similarly for cot inverse x, it is same. We have to write only minus 1 upon 1 plus x square. Condition is again x belongs to R. तो tan inverse और cot inverse के लिए similar type का है, cot inverse के लिए हमें minus substitute करना है. Next is dy dx of sec inverse x. तो sec inverse x के लिए है 1 upon modulus of x root में यहाँ साइन में जो हमने लिखा था उससे उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, एंड कंडीशन इज जो मॉड्यूलस x लेस देन 1 था, यहाँ पे मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 1 इज द कंडीशन. सिमिलरली फॉर cos इनवर्स x, जैसे आगे का था cosec इनवर्स x के लिए भी sec इनवर्स x के जैसे ही सिर्फ यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा. सो माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ रूट x square minus 1, condition is modulus x greater than 1. तो sec inverse x और cosec inverse x के लिए similar type का है, सिर्फ cosec inverse x में हमें यहाँ पर minus यूज करना है. तो sin inverse x का 1 upon root 1 minus x square, cos inverse x का minus 1 upon root 1 minus x square, tan inverse x का 1 upon 1 plus x square, cot inverse x का minus 1 upon 1 plus x square, sec inverse x का 1 upon modulus of x, इससे उल्टा that is root x square minus 1, cosec inverse x का minus 1 upon modulus of x root x square minus 1. तो ये जो दो की पैर है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से हम याद रखेंगे तो बहुत ही इजीली हमें ये फॉर्मूलास याद हो जाएंगे. तो हमें ये फॉर्मूला सभी लर्न बाय हार्ट करने हैं और फिर हम इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे. Now we will solve example based on inverse trigonometric function. यहाँ पे find dy by dx if y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. तो हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. इसका हमें डेरिवेटिव करना है. फ्रेंड्स ये फिर से कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर सिर्फ x नहीं है, साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है. तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करें? सो dy बाय dx इज इक्वल टू हमारी जो फॉर्मूला थी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट वाज 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. सो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो यहाँ पे साइन इनवर्स समथिंग है,
साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 माइनस समथिंग स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम अंदर गए तो हमें ये मिला, तो यहां हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, कंपोजिट फंक्शन है, साइन इनवर्स x की फॉर्मूला यूज की इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन भी करते जाएंगे और इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन, चलिए एक टर्म लिख देते हैं फिर से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये 2 जो है बाहर है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डिवीजन रूल से, तो डिवीजन रूल से जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x माइनस डिवीजन रूल का x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इस 2 को यहां 1 के साथ में ले आते हैं, सो 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हम यहां पे कर देते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू 4 और माइनस 4x स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो इसका हम रूट करेंगे, स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे का स्क्वायर रूट है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऊपर ले लेंगे। नाउ हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये डेरिवेटिव सब भी हमने कर दिए, अब हमें सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x रेज टू 4। यहां ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और ये माइनस x, सो माइनस x इंटू 2x, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते जाते हैं, सो 2 अपॉन, नाउ दिस इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू 4, तो ये a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। यहां पे 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जो यहाँ पे 2 पावर थी एक कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 1 पावर रहेगी,
सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन, इसका स्क्वायर रूट हम ले लें, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे, ये जो स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर चला जाएगा, इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये रह गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज फर्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस एग्जांपल। हमने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग से स्टार्ट किया, उसका डेरिवेटिव किया 1 अपॉन रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो अंदर है उसका डेरिवेटिव किया, फिर इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते गए, तो लास्ट में हमें आंसर मिला 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस मेथड में हमने कुछ एज्यूम नहीं किया है। अभी जो दूसरी मेथड है, सेकेंड मेथड, उसके अंदर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू कुछ सब्स्टिट्यूशन ले जाएंगे, तो ये सब जो कैलकुलेशन हुए वो कैलकुलेशन काफी हद तक कम हो जाएंगे और उस मेथड से भी हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब वो मेथड देखते हैं। नाउ सेकेंड मेथड, नाउ वी सॉल्व दिस एग्जांपल बाय टेकिंग सम सब्स्टिट्यूशन। हमने प्रीवियस मेथड में देखा कि काफी लेंथी कैलकुलेशन वहां पे हो रहा था, तो हम इसे कुछ सब्स्टिट्यूशन लेकर भी इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें सब्स्टिट्यूशन लेने में बहुत ध्यान रखना है, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो हियर वी हैव गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एग्जांपल है। अब यहाँ साइन इनवर्स है, अब हमें अंदर ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना है कि साइन की टर्म आ जाए, ताकि साइन इनवर्स साइन समथिंग, तो वो साइन इनवर्स और साइन चला जाएगा और जो है वो रह जाएगा। तो हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन ले? सो वी नो वन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो इसके साथ में मैच करिए 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ x की जगह पे अगर मैं tan थीटा रखता हूं तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स sin 2 थीटा वो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा, सो फ्रॉम दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हम कह सकते हैं, वो हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अभी हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। जब वो प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा तब हम डेरिवेटिव करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x की जगह पे हम रख देते हैं ये tan थीटा, सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये जो फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है, सो साइन 2 थीटा। सो अब फ्रेंड्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये साइन इनवर्स और ये साइन वो चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू x इज इक्वल टू tan थीटा लिया था, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। तो ये हमारा जो y था, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो इस प्रॉब्लम का जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है वो हुआ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स dy dx ऑफ ये 2 जो है वो बाहर आ गया, कांस्टेंट है इसलिए tan इनवर्स x, so 2 times। now we know the formula of tan inverse x। tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square, तो यहाँ पे ये हो गया 1 upon 1 plus x square, so this is equal to 2 upon 1 plus x square, so this is the answer। so we can observe in method 1 our answer was same 2 upon 1 plus x square।
तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन लेने से जो हमारा क्लमजी कैलकुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा था, वो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गया। लेकिन ये मेथड करने के लिए हमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेते आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, तो ही ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर हमें ये नहीं आता है तो फिर हमें जो कंपोजिट फंक्शन की मेथड जो हमने प्रीवियस मेथड की उस तरह से एग्जांपल को सॉल्व करना पड़ेगा। Now, implicit function. What do we understand with implicit function? If we have a function of this form f of xy is equal to 0, यानी एक इक्वेशन है जिसके अंदर x और y के फॉर्म में हमारे पास टर्म है। If this expression cannot be expressed as y is equal to f of x, अगर हम y को सब्जेक्ट ना बना सके, then f of xy equal to 0 is called implicit function। यानी हम y को डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर हमें y को सब्जेक्ट बनाना है तो वो इजीली नहीं बन पाएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। सो दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। साइन x प्लस y प्लस e रेज टू xy इज इक्वल टू 0, यहां पे भी y डायरेक्टली x के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो इस टाइप के एग्जांपल का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें? तो यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि y को हम f of x के फॉर्म में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, और हमें y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे एग्जांपल की प्रैक्टिस हम कैसे करें, कैसे dy by dx फाइंड आउट करें? तो उसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है फ्रेंड्स। अगर हमारे पास y है तो इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिखते हैं dy by dx। अब हम जब ऐसे कोई फंक्शन होगा जिसमें y के भी कोई टर्म हो सकते हैं, y स्क्वायर log y e रेज़ टू y एनीथिंग, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करें? सपोज मेरे पास y स्क्वायर है, तो हम y स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो वी विल डिफरेंशिएट दिस लाइक कंपोजिट फंक्शन। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो हम लिखेंगे y स्क्वायर का 2y, y x रेज़ टू n वाली फॉर्मूला जो उसी तरह से y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का डेरिवेटिव हमें लिखना पड़ेगा dy by dx। जब हम x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से करते हैं तो आंसर 1 आता है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर है dy by dx, तो वो हमें यहाँ लिखना पड़ता है। तो जब भी हम y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें लिखना है 2y dy by dx। सपोज इसी की जगह पे हमारे पास है y क्यूब और हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 3y स्क्वायर इंटू dy by dx। सपोज हमारे पास log y है कहीं पे, तो log y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा log y, यानी log x की फॉर्मूला लगेगी, तो log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का हो जाएगा dy by dx। सपोज हमारे पास e रेज़ टू y, e रेज़ टू y का अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू y का डेरिवेटिव e रेज़ टू y इनटू y का डेरिवेटिव dy by dx। सपोज हमारे पास है कहीं पे sin y, sin y का हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करें? तो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin y का डेरिवेटिव cos y इनटू y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx। तो फ्रेंड्स, जब भी y की कोई ऐसी टर्म हमें इक्वेशन में दिखे और उसका हमें डेरिवेटिव करना है तो इस मेथड से हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, और फिर जहां जहां भी dy by dx है उन सबको कलेक्ट करके हम dy by dx को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हमें y इज इक्वल टू f of x के लिए dy by dx बहुत ही इजीली मिल जाएगा। सो वंस अगेन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि इसमें हम y इज इक्वल टू f of x के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस।
then f of xy equal to 0 is called implicit function. तो implicit function का हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जहां जहां भी y वाली टर्म है तो y का अगर हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो हम इस फॉर्म में करेंगे, और x वाली टर्म्स का डेरिवेटिव जैसे हम करते थे वैसे यहाँ पर भी सभी रूल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल जो हम करते थे उसी फॉर्म में हमें करना है। सो नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाए। Now example of implicit function, if x square plus xy plus y square is equal to 10 then find dy by dx। यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाना डिफिकल्ट है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करें? सो हियर वी हैव गिवन x square plus xy plus y square is equal to 10। इसे अगर हमें जीरो के फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। 10 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो -10 is equal to 0 हो सकता है। अब हम क्या करें, इस पूरे का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखिए जहां पर y की टर्म है उसका भी डेरिवेटिव हमें करना है, जैसा हमने जस्ट बिफोर रिमेंबर में लिखा था उस तरह से हमें y वाली टर्म्स का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस xy है, तो xy का डेरिवेटिव हमें करना है, तो यहाँ पे x और y इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे करेंगे, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो फिर से फ्रेंड ये xy वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल से, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हुआ dy बाय dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो ये जो है वो इस टर्म का डेरिवेटिव है, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो हमने आगे लिखा था y स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर वाली फॉर्मूला, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx। अब फ्रेंड्स आप x स्क्वायर के डेरिवेटिव और y स्क्वायर के डेरिवेटिव में डिफरेंस समझिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर हम x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है इसलिए वो लिखते नहीं है। यहाँ पर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से हमें पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है dy बाय dx। आई होप इट इज क्लियर कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x क्यों है और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाय dx क्यों है। इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव, 10 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो यहाँ पे हमने पूरे फॉर्म का, पूरे इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जहां पर भी dy बाय dx है उन सब टर्म को एक साथ मिलाएंगे, बाकी के टर्म हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो dy dx वाले हैं x dy बाय dx, फिर दूसरा ये टर्म है प्लस 2y dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू इस टर्म को और y इंटू 1 दैट इज y, उसे हम उस साइड ले जाते हैं, सो माइनस 2x माइनस y हो गया। इन दोनों में से हम dy बाय dx कॉमन निकाल सकते हैं, सो x प्लस 2y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। अब यहां से हम dy बाय dx को सब्जेक्ट बना दें, यहां सब जगह हमें देयरफॉर लिखते जाना है फ्रेंड्स। So dy by dx is equal to minus 2x minus y upon x plus 2y. So this is the answer of derivative. तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव हो गया dy by dx is equal to minus 2x minus y upon x plus 2y। तो हमने पूरे इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया। जहां जहां y वाले टर्म है उसका डेरिवेटिव हमने y का जो भी है y स्क्वायर है तो 2y इंटू dy बाय dx लिखा है, वो स्टेप हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर dy बाय dx जहां पर थे वो सब हमने साथ में ला दिए, बाकी सब राइट हैंड साइड में ले गए और dy बाय dx को हमने सब्जेक्ट यानी इसका कर्ता बना दिया, तो हमें आंसर मिल गया। आई होप इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। फिर से ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, हम y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू साइन समथिंग। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, साइन के अंदर x और y का मल्टीप्लिकेशन है, तो साइन समथिंग का हम डेरिवेटिव करें तो वो हो जाएगा cos xy इनटू, अब हमें अंदर वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी xy का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू cos xy। अब हमें यहाँ पे xy का डिफरेंशिएशन करना है और x और y का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे सभी डेरिवेटिव हो चुके हैं, हमें सिर्फ dy बाय dx कलेक्ट करना है, उसे सब्जेक्ट बनाना है। सो 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू cos xy x dy बाय dx, और ये हो गया y इंटू 1 मीन्स y। सो 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में कर दे तो x इंटू cos xy dy बाय dx प्लस y cos xy। अब dy बाय dx वाली एक ये टर्म है और dy बाय dx वाली एक ये टर्म है, तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और बाकी सब हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये 1 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। सो dy बाय dx ये टर्म, ये इस साइड आ जाएगा, तो माइनस x cos xy dy बाय dx दिस इज इक्वल टू, यहां पर है y cos xy और ये 1 जो है हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, दिस इज माइनस 1। अब इन दोनों टर्म में से हम dy बाय dx कॉमन निकाल लें, तो dy बाय dx यहां कॉमन निकालेंगे, सो 1 माइनस x cos xy dy बाय dx, इन दोनों टर्म में से हमने dy बाय dx कॉमन निकाल दिया, इज इक्वल टू y cos xy minus 1। so therefore dy by dx is equal to, इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, so y cos xy minus 1 upon 1 minus x cos xy, this is the derivative of given equation x plus y is equal to sin xy। तो फिर से फ्रेंड, हमने पूरे का डेरिवेटिव कर दिया, जहां जहां y है उसका डेरिवेटिव dy बाय dx, और फिर dy बाय dx जहां जहां है हमने उन सबको कलेक्ट कर लिया और उसे सब्जेक्ट बना दिया। सो आई होप कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है x sin y प्लस y sin x इज इक्वल टू 5। फिर से ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो पूरे इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर दें। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx ऑफ x इंटू साइन y प्लस dy बाय dx ऑफ y इंटू साइन x इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। चलिए तो अभी यहाँ dy बाय dx लिखते हैं। अब यहाँ इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो x और sin y दो का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल x एज इट इज sin y का डेरिवेटिव करना है, तो sin y का डेरिवेटिव अभी हम यहाँ लिख देते हैं dy बाय dx ऑफ sin y, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, प्लस sin y एज इट इज dy बाय dx ऑफ x। तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर दिया फर्स्ट में। चलिए सेकेंड में सेम y एज इट इज dy बाय dx ऑफ
sin x, then plus sin x as it is dy dx of y is equal to, अब 5 का डेरिवेटिव हम यहाँ लिख देते हैं 0। तो ये सेकेंड स्टेप जो था हमारा y sin x का डेरिवेटिव, ये हो गया यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम डेरिवेटिव करते जाते हैं। सो x sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx। फिर से फ्रेंड समझिए कि sin x होता तो डेरिवेटिव तो cos x और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, लेकिन यहाँ पर sin y है, sin y का डेरिवेटिव cos y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। चलिए इसका डेरिवेटिव हो गया प्लस sin y x का डेरिवेटिव 1 प्लस y sin x का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ पे आप कंपेयर करिए, sin y का जब हमने डेरिवेटिव किया तो हमने लिखा cos y इंटू dy बाई dx, लेकिन जब हमने sin x का डेरिवेटिव किया तब सिर्फ cos x लिखा, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस sin x और ये है हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो अब हम dy बाई dx वाले टर्म को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो एक ये और एक ये, इन दोनों में से हम dy बाई dx कॉमन निकाल देते हैं। सो देयरफॉर x cos y और ये प्लस sin x dy बाई dx। तो इन दोनों टर्म में से हमने dy बाई dx कॉमन निकाल दिया। अब ये हो गया हमारा sin y इंटू 1 दैट इज sin y और ये y cos x, उसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस sin y माइनस y cos x। अब हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे सामने के साइड पे। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस sin y माइनस y cos x अपॉन ये जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो x cos y प्लस sin x। सो दिस इज the derivative of this equation dy by dx। तो इस तरह से फ्रेंड इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें पूरा इक्वेशन या पूरा फंक्शन जो दिया उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। जहां पर भी y वाली टर्म है y का डेरिवेटिव dy बाई dx लिखना है, और फिर जहां जहां dy बाई dx है उन सभी dy बाई dx को हम कलेक्ट करेंगे, उसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए, बुक में से यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए, तो आप बहुत ही इजीली इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे।